This is the format. The asset account will be prepared. Machinery account, debit for increase, credit for decrease in the asset. You know the rule of generalizing. Debit for increase in asset and credit for decrease in the asset. So चलिए पहले आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्व एग्जांपल. Illustration number 3. Illustration number 3. On 1st April 2015, turn your cameras on, everyone. Anjali and Ayush, turn your camera on. On 1st April 2015, Ashoka Limited purchased machinery costing 5 lakh plus IGST at the rate of 12%. On 1st July 2018, machinery was sold for 2 lakh plus IGST at the rate of 12%. We have to prepare machinery account, and the depreciation charged on this asset is 10% per annum. 10% per annum. So how you will go about, I will tell you in this format. क्वेश्चन को कैसे करना है, किस साइड से स्टार्ट करना है. Increase in asset will be recorded on the debit side. Increase in asset will be recorded on the debit side. You will write the date 1st April 2015. The question will always start with the purchase date of purchase. On the debit side you will write the date of purchase and you will write journal entry होगी इसकी machinery account debit to bank. Machinery account debit to bank. So we will write this side to bank account. To bank account 5 lakh. This is the first journal entry. On 31st March 2016, on 31st March 2016, depreciation will be charged on this asset at the end of the year for the whole year. 10% depreciation on this asset will be $50,000. 10% depreciation on this asset will be 50,000 for whole year. Now you see how we will do this balancing. Total cost of the asset was 5 lakh. You leave 2 lines here.
We will start from debit side. Total this side. This side total is 5 lakh. Write the same total here in front. 5 lakh. Now you see the cost of machine on 1st April 2015 was 5 lakh. Then the depreciation 50,000 was charged at the end of the year, 31st March 2016. Now the cost of the machine will be 5 lakh minus 50,000, that is 4 lakh 50,000. You will write here 31st March by balance carried down. By balance carried down. Carried down means carried down to the next date. By balance carried down 4 lakh 50,000. This 4 lakh 50,000 will be carried to the next 2016 1st April. बेटा ये ध्यान से देखिए कहां से कहां को जा रहे हैं इस अकाउंट में. It is very important. It is very, very important to know which side we are moving. From there, this balance is carried to this side. Here we will write to balance brought down. BD, date also you see, date. Date also is very important. This is 31st March 2016. And one day after, this is 1st April 2016. New academic, new financial year. This is new financial year. Again, Anjali and Prince, your cameras are off. I am removing you from the class. I am removing you from the class today. Okay? So that from tomorrow onwards, you will keep yourself proper. So here you go. One out. Now this is second one. Saiba, keep your camera on. I have removed both of them. Those whose cameras will be off, I will remove you. Now everybody pay attention. The cost of the asset is 4,50,000 now. Is 4,50,000. And again the depreciation will be charged at the end of the year 2017 31st again out of 4,50,000 out of 4,50,000 50,000 रुपीस फिर से क्या हो गए कम हो गए 50,000 रुपीस फिर से कम हो गए तो असेट की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी. नाउ योर असेट वैल्यू विल डिक्रीज बाय 50,000 एंड इट विल बी ₹4 lakh. Now the value of the asset is 4 lakh rupees. 4 lakh rupees. That value you will bring here down again next year 2017 1st April. तब तक आप हर साल डेट लगाते रहेंगे जब तक कि मशीन को बेचने वाली डेट ना आ जाए.
2017 पे पहुंच गए हम। 2017 अगेन $4 lakh, again this side 4 lakh, फिर से डेप्थ लगेगा 2018 31st March. At the end of the year, depreciation will be charged at the end of the year, 31st March every year, and again it will be 50,000. So the value of the asset will be 3,50,000. 4 lakh minus depreciation 50,000. 3,50,000. 3,50,000. Okay. So 3,50,000 again it will come to the next accounting year. First April to 3,50,000. 3,50,000 is the value of asset in the beginning of 2018. Beginning of 2018, the value of asset is 3,50,000. अपना कैमरा सही करिए. अर्स एंड प्रिंस. प्रिंस, what is the time? What is the time of the class? Sir, I have thought there is math class on 8:35 a.m. So after that accounts class will be there. तो पता नहीं, every it is fixed time 8:10 only. Now this 3,50,000 is the value of asset on 1st April 2018. But you see, Jasanjit, asset is sold on 1st July 2018. Hassan, pay attention. Asset is sold on 1st July 2018. अब अप्रैल 1st 2018 से लेकर जुलाई 1st 2018 तक असेट में और डेप्थ लगेगा. अभी अब पूरे साल का डेप्थ नहीं लगेगा. जिस तारीख को परचेज अपने असेट सेल की है वो तारीख यहां पर नोट करेंगे. 2018 1st जुलाई बाय डेप अकाउंट. अब आप कितने महीने का डेप लगाएंगे? अप्रैल मई जून. अप्रैल मई जून. Only 3 months debt on that machine will be charged again. तो कुसप्रीत 3 months का डेप कितना होगा? What will be the debt for 3 months? Kusprit. The total debt for the whole year is 50,000. What will be the debt for 3 months? Anybody can tell? What will be the debt for 3 months? If the debt for whole year 12 months is 50,000. 12,500.
12,500. How we will calculate? How we will calculate? Sir, 3 months is a quarter of a year, just divided by 4. Yeah, we have to. Right? Whenever you want to calculate for months, divide by 12 and multiply by जिससे भी आपको फाइंड करना है. This will come 12,500. 12,500 is the depreciation for 3 months. तो 3 months का डेप लिख दिया हमने. My dear, इधर देखिए, everyone pay attention here. Everyone pay attention. 3,50,000. 3,50,000 is the cost of asset, reduced value of asset here. 3,50,000 is the reduced value of asset. And just a minute, 3,50,000. 3,50,000 is the cost of asset. उसमें से 12,500 depreciation is charged for 3 months. When depreciation is charged for 3 months, 12,500, इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,37,500. After 3 months, on 1st July 2018, the cost of this machine will further reduce to 3,37,500. How? 3,50,000 minus 12,500 जो डेप इस पे चार्ज हुआ है, और आपने ये मशीन बेच दी है कितने की? 2 लाख रुपीस. On 1st July, again you will write here, we sold this machine for 2 lakh rupees. We sold this machine for 2 lakh rupees. तो आपको कितने रुपीस का लॉस हो गया अंशिका? What is the loss? Sir, 3,37,500. 3,37,500 तो उसकी कॉस्ट हो गई. अब यूज्ड कॉस्ट जो मशीन 3,37,500 की हो चुकी है, आपने उसे 2 लाख रुपीस में बेच दिया. तो Sir, 1 lakh. Sir, 1,37,500. Very good. The loss is 1,37,500, which you will write here. By statement of profit and loss. $1,37,500. This is the answer of the question. 1,37,500 rupees. This is what we have to calculate in this particular chapter, depreciation. We have to calculate the profit or loss on sale of a particular asset after charging depreciation for the
टाइम पीरियड इट इज बीइंग यूज्ड। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन, अगर आप इसे अकाउंटिंग मेथड से ना करें तो मशीन 5 लाख रुपीस की खरीदी थी, 10% उस पर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना कंपनी ने डिसाइड किया था। एवरी ईयर उसकी वैल्यू 10% कम हो रही है, इसका मतलब डेप्रिशिएट हो रही है। एंड अगर हम ओरली भी इसे करें तो 2015 में उसे खरीदा था, 2016 में उसकी वैल्यू 10% कम होके 5 लाख से हो जाएगी 4,50,000। नेक्स्ट ईयर 2017 में उसकी वैल्यू कम होके हो जाएगी 4,50,000 से -50,000 4 लाख रुपीस। अगले साल फिर 50,000 रुपीस कम हो जाएगी, इट मींस इट विल बिकम 3,50,000 रुपीस। ओरली वी आर डूइंग ओरली। सो 3,50,000 रुपीस जब उसकी वैल्यू कम हो गई, रिड्यूस्ड वैल्यू आ गई, अगेन उस पर डेप्रिसिएशन लगा। अगेन द डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड फॉर 3 months now. The depreciation is charged for 3 months now, and the depreciation is how much? The depreciation is 12,500 for 3 months. For 3 months, the depreciation is 12,500. तो जब 12,500 डेप्रिसिएशन लगा तो वैल्यू उसकी कम हो गई, कितनी हो गई? 3,37,500। 3,37,500। 3,50,000 में से 12,500 माइनस कर दिया। फिर उसके बाद उस मशीन को आपने बेचा 2 लाख रुपीस में, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख रुपीस। तो आपका लॉस हो गया 1,37,500 रुपीस। 1,37,500 रुपीस। डिड यू गेट द मेथड? ये क्वेश्चन देखिए इधर, ये फॉर्मेट है बेटा। यू हैव टू मेक द असेट अकाउंट, एंड इन दैट असेट अकाउंट यू हैव टू शो हाउ द वैल्यू इज रिड्यूसिंग एवरी ईयर। तो ये आपको शो करना है। दिस साइड you will write the total cost of the asset on which it was acquired or purchased. यहां पर इक्वल टू में साइन लगाना है, दोनों साइड को इक्वल करने के लिए। इधर 5 लाख का, उसमें से 50,000 रुपीज जो डेप्रिसिएशन होगा मशीन का, यू विल राइट हियर 50,000 लाइक दिस। फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आ गया 4,50,000। 4,50,000 की मशीन है, उसको आपने यहां पर शो किया नेक्स्ट ईयर। This is next year, 1st April. This is 31st March. Dates are very important in this question. Depreciation dates are very important. एक एक दिन में डेप्रिसिएशन चेंज हो जाता है बेटा। आपने अगर गलत डेप्रिसिएशन लगाया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। पहली बार डेप्रिसिएशन लगाएंगे जिस दिन मशीन परचेज की है, उस दिन से लेकर 31st मार्च तक फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन लगाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। और लास्ट ईयर में, जिस ईयर में उसे बेचेंगे, उसमें डेप लगाएंगे 1st अप्रैल से लेकर जिस तारीख को बेची है उस तारीख तक। यही दो डिफरेंस है। बाकी बीच में जितने भी साल होंगे उसमें पूरा साल का डेप लगेगा। पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट ईयर जब मशीन खरीदेंगे, नोट करिए कहीं पर, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड। एवरीबडी नोट डाउन, आई एम लुकिंग। एवरीबडी नोट डाउन। फर्स्ट ईयर इन द ईयर ऑफ परचेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू, आप डेप्रिसिएशन गलत निकालेंगे। और आप देखिए इधर, अगर पहली बार डेप्रिसिएशन गलत आ गया तो नीचे पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। इन द फर्स्ट ईयर इफ यू कैलकुलेट रॉन्ग डेप्रिसिएशन फॉर रॉन्ग पीरियड, वहां 6 महीने का डेप निकालना था, आपने 1 साल का निकाल दिया पहले साल में।
वहां 9 महीने का डेप्थ निकालना था, इफ यू कैलकुलेट फॉर 1 ईयर, वहां 1 ईयर का डेप्थ निकालना था, आपने कैलकुलेट किया 8 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, सब गलत हो जाएगा, नीचे पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, फिर आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। फर्स्ट ईयर करेक्ट डेप्थ निकालना जरूरी है। तो फर्स्ट ईयर कहां से कहां तक डेप्थ निकालेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं, नोट डाउन। इन द ईयर ऑफ परचेज और द फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, राइट डाउन, फ्रॉम डेट ऑफ परचेज। यहां पर डेट ऑफ परचेज क्या थी? 1 अप्रैल 2015, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। जिस साल आपने खरीदी है उसके एंड तक, एंड तक मतलब 31st मार्च तक। ये 2015 था। एवरीबडी लुक हियर, asset was purchased, machine was purchased on 1st April 2015. Now I have calculated debt on 31st March 2016. पूरा एक साल का टाइम लिया, 31st मार्च तक, 1 अप्रैल से 31st मार्च तक। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, अगर ये मशीन खरीदी होती यहां पर 1 जुलाई को, 1 जुलाई को, तो हमारा डेट लगता है 1 जुलाई से 31 मार्च तक, यानी 9 मंथ्स। 1 जुलाई से 31 मार्च तक बेटा डेट लगता, फिर 9 मंथ्स का। अगर ये असेट खरीदी होती 1 अक्टूबर को, अक्टूबर, तो आपका डेट लगता 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। प्रिंस क्लियर? 6 मंथ्स। और अगर आपने खरीदी होती जनवरी में यह मशीन, 1 जनवरी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का डेट लगता सबसे पहले यहां पर। तो आप देखिए डेट कितना अलग अलग होता। अगर 3 महीने का डेट लगता तो आता 12,500 फर्स्ट ईयर में, यहां पर 6 महीने का लगता तो आता 25,000, 9 मंथ्स का डेट लगता तो आता 37,500, और पूरे साल का लगा है, इसलिए दिस इज 50,000। सो पॉइंट इज दैट अगर आपने ये डेट यहां पर गलत निकाला होता फर्स्ट ईयर में, तो फिर ये बैलेंस गलत आता, 4,50,000 की जगह कुछ और आता, फिर आपका यहां पर गलत हो जाता और आगे पूरा क्वेश्चन गलत, और लास्ट में प्रॉफिट या लॉस भी फिर गलत आता। द होल क्वेश्चन जो आप करेंगे इट विल बिकम रॉन्ग। उसके बाद तो आसान है बेटा, जो बीच में जितने भी साल होंगे उसमें पूरे साल का डेप्थ लगेगा, इट इज वेरी सिंपल। अब लास्ट में आ जाइए, लास्ट में जब डेप्थ निकालेंगे, इन द ईयर ऑफ सेल लिखिए, नोट कीजिए, when the asset will be sold, when the asset will be sold, when the asset will be sold, डेप्थ लगेगा from, depreciation will be calculated from 1st April, 1st April to 1st April to the डेट ऑफ सेल। जिस तारीख को असेट बेची है उस तारीख तक डेप्थ लगेगा, 1 अप्रैल से डेट ऑफ सेल। जैसे ये देखिए डेट ऑफ सेल क्या थी यहां पर, जुलाई, डेट ऑफ सेल थी जुलाई, तो हमने डेप्थ लगाया 1 अप्रैल से जुलाई तक, 1 अप्रैल से जुलाई तक। इसमें उल्टा नहीं करना है कि कहीं आप लगा दे जुलाई से मार्च तक, वो इसमें करते हैं फर्स्ट ईयर में, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू 31st मार्च, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू 31st मार्च
वो फर्स्ट ईयर में करना है, इन द ईयर ऑफ परचेज. In the year of sale, we will calculate for the time period for which it is used. So it is used from 1st April to the date of sale. Date of sale आपको पता है. सबसे पहले लिखेंगे यहां पर डेप्रिसिएशन, फिर लिखेंगे कितने की बेची एसेट, और इन दोनों को ऐड करके कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा लॉस या प्रॉफिट, जो भी आना होगा. अगर ये ज्यादा में बेचते मशीन तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता था. आर यू गेटिंग? जब प्रॉफिट वाला क्वेश्चन आएगा देन वी विल सी. तो ऐसे आपको जो है असेट अकाउंट बनाना है. दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ असेट अकाउंट. एवरी डे एटलीस्ट 4 और 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए. अकाउंट्स विल बी द मोस्ट ट्रबलिंग फॉर यू अगर आपने जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए. मैनी ऑफ यू आर टेकिंग वेरी लाइटली. बेटा आपके पेपर में सिर्फ 10 नंबर के थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, ओनली 10 मार्क्स, वो भी 1 मार्क के थ्योरी के सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस. एवरीथिंग विल बी न्यूमेरिकल इन द फाइनल टर्म. एवरीथिंग विल बी न्यूमेरिकल. और अगर आपने हर चैप्टर के 70, 80 एंड अबव क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. ये भी क्लियर है. सो डोंट टेक इट लाइटली, अदरवाइज यू विल सफर इन द लास्ट मोमेंट. अभी आपके पास 2-3 महीने हैं. ट्राई टू कवर जो भी आपको नहीं आता है. फर्स्ट टर्म का भी आपको अभी कुछ नहीं आता है. You have just done it in the air. Okay, 2-2, 4-4 क्वेश्चन करके you are thinking, YouTube से पढ़ के you are thinking that you are going to get it. No, you have to give thorough practice. सिर्फ देखने से और सुनने से कुछ नहीं होगा. You have to do it, practice it. More than 70 numericals per chapter you have to do. More than 70 numericals per chapter. तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा, ये ध्यान रहे. All the concepts should be clear. And some are still not joining the classes, and you will see very soon that what's the action which is being taken on them. Very soon you will come to know about it. So copy it and try to solve the questions in the fair copy directly. I hope you all have taken your report cards from the school. If you have not taken, go and get it. Go and get your report cards from the school after depositing your fees up to September. Messages already have been sent to you. So submit your fees. पेंडिंग फीस ऑफ द प्रीवियस ईयर की अगर होगी तो आपको जो है 1-2 दिन में डिसकंटिन्यू किया जाएगा फ्रॉम द क्लास. सो टेक केयर, कंप्लीट योर वर्क एंड कम बैक टुमारो. थैंक यू. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू.